Hi everyone, my name is Jyoti and I am or rather was a student of NIT Jamshedpur as I have just received my 8th semester's result. And that being said, I thought this would be the perfect timing to put up a college review video as the memories are still fresh and the new batch would be requiring some sort of data to make their decisions as to which college they would like to choose. So yeah, this video would be informative as I've divided it into various sections dedicated to major segments that are important from a college life perspective. For example, academics, attendance, placements, clubs, etc. etc. So if you think this video might be helpful to someone you know, do send it to them. So let's start with the academics at NIT Jamshedpur. Everything is up to date with respect to new education policy of India, obviously, and apart from that, the course curriculum is designed in such a way that the first 2 years of engineering you will be trained on traditional engineering, which is to lay out a foundation for you guys, and the next 2 years they will bring you up to speed with respect to all the latest technologies and trends present in the market, and all of it would be done with the help of electives rolled down in the third and fourth year of your BTech. Coming to the attendance system of NIT Jamshedpur, this is the fact I love the most about NIT Jamshedpur. So every time I interact with students from other colleges or institutes, they are constantly bitching about the fact that how their attendance is too low and the professors are gonna kill them for it. Ye ho jayega, wo ho jayega. And on the other hand, we, the students of NIT Jamshedpur, cannot relate, not even a bit. I mean, on paper, 75% attendance is mandatory for us to be eligible to appear for end semester examinations. But never in my 4 years of engineering life I've seen a person getting disbarred for low attendance. And trust me guys, I have had classmates with 0% attendance. The flexibility in attendance system is a huge plus point because honestly not everyone is interested to build a career in the course they have enrolled themselves in, so they need time to explore other options too and prepare for it from placements point of view. So yes, the flexibility in attendance is a huge plus point. Coming to the faculty at NIT Jamshedpur, so first of all everybody is highly qualified, which is quite obvious क्योंकि NIT की faculty है. Then मैंने एक चीज़ देखा है कि एकदम एक्सट्रीम वर्ल्ड्स के जो प्रोफेसर्स हैं वो सब एक ही जगह पे हैं NIT जमशेदपुर पे. मतलब यू विल फाइंड एवरी टाइप ऑफ प्रोफेसर्स हियर. कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनसे तुम अकेडमिकली जितने भी फेवर दे दो, उन्हें पसंद है, जो लोग बच्चे सिंसियर होते हैं तो वो तुम्हें हर टाइप की हेल्प करेंगे अकेडमिकली, बट नॉट मच व्हेन इट कम्स टू नॉन अकेडमिक थिंग्स. बट कुछ प्रोफेसर्स हैं जो लोग अकेडमिक्स की बाहर की दुनिया के प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं और तुम्हें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हैं, मतलब चेकअप भी करते रहते हैं कि ठीक हो नहीं हो ये सब. फिर एक आते हैं प्रोफेसर जो तुम उनके क्लास में 1 मिनट लेट हो जाओ तो तुम्हें निकाल देंगे और फिर बोलेंगे आज हम सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं और इसके मार्क्स ऐड होंगे फाइनल ग्रेड्स में, तुम्हें 0 आएगा. फिर दूसरे टाइप के प्रोफेसर्स होते हैं जो पहले से अनाउंस कर देते हैं कि वो क्लास टेस्ट लेने वाले हो, बट तुम उनकी क्लास में नहीं जाओगे तो वो तुम्हें कॉल करवाएंगे कि आओ भाई क्लास टेस्ट दे दो प्लीज़. फिर यही स्ट्रिक्ट प्रोफेसर्स जो क्लास में होते हैं वो तुम्हें बाहर रास्ते में मिलेंगे तो वो खुद तुम्हें टोक करके हालचाल लेने लगेंगे, कैसे हो, लाइफ कैसी चल रही है एंड ऑल. तो हर टाइप का मिक्स है, तुम किसी को भी फिगर आउट नहीं कर पाओगे, तुम्हें बस है कि तुम एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करो. तो हाँ, हर टाइप के प्रोफेसर्स एक ही जगह पे है. Okay, so now we'll talk about campus area and infrastructure. So the campus area is pretty huge but not at all efficiently utilized. It could have been better because जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब बस 2 स्नैक्स कॉर्नर थे, एक कैंटीन था, 2 एकेडमिक बिल्डिंग, बाकी सारे हॉस्टल्स. बस एक गोल चक्कर है, 3 रास्ते जाते हैं, आमने सामने में सब खत्म. बट मेन गेट बहुत दूर था. मेन गेट से न्यू बिल्डिंग के बीच में इतना बड़ा जंगल है, बीच में कुछ नहीं है वहाँ पे. कितना कुछ बन सकता था बिकॉज मैं NIT वारंगल गई हूँ, वो इतना छोटू सा कैंपस और हर जगह कुछ ना कुछ है, एकदम कितना ब्यूटीफुली बिल्ट है वो भाई. बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था, तो दे कैन डू इट टू. और ओवर पास्ट 4 years आई हैव सीन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ट्राई तो कर रहा है, कुछ हो रहा है. और जहाँ तक मुझे खबर आई है कि दे आर बिल्डिंग अ न्यू स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, वहीं उसी जगह पे मेन गेट से न्यू बिल्डिंग के बीच में दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग इट. अब पता नहीं वो कब तक बनेगा और कैसा बनेगा, एक्सेसिबल भी होगा कि नहीं सही से, आई डोंट नो.
बट अगर जितना ग्रैंड वो बोल रहे बनेगा वैसा हुआ तो फिर तो मज़ा आ जाएगा. देन in terms of infrastructure, our main attraction was supposed to be our new academic building because उसके classrooms वगैरह बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए थे और हमें भी फर्स्ट टाइम देख के तो बहुत सही लगा था बिकॉज हमने विंटर में एडमिशन लिया था, हमारा लेट एडमिशन था. बट जैसे रेनी सीज़न आया वो थर्ड फ्लोर में लीकेज होने लगी और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो 4-5 साल पहले बनाया है. तो उस हिसाब से या तो क्वालिटी में इशू है या तो कंस्ट्रक्शन वालों ने कुछ तो गड़बड़ करा है, पता नहीं किस साइड का ग्लिच है. बट 4 इयर्स में वो बना नहीं है सही से. उन्होंने थर्ड फ्लोर में क्लासेस लगवाना बंद कर दी बारिश में, बट वो बन नहीं पाया. ना ही वाटर सप्लाई ढंग की है किसी वॉशरूम में एकेडमिक बिल्डिंग के. तो ये चीज़ एक इशू है और ये मैंने कभी ठीक होते हुए नहीं देखा. अदरवाइज़ हॉस्टल में मेंटेनेंस टाइम टू टाइम है, हर दिन होता है. और ये चीज़ भी डिस्क्लेमर है कि भाई NIT जमशेदपुर इज़ सराउंडेड बाई स्मॉल इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम ऑल द साइड्स. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, ब्लैक डस्ट, जो तुम रूम बंद करके खिड़की बंद करके भी रखोगे तो विद इन 2 days तुम्हें वो दिखने लगेगा. इट इज़ विजिबल टू नेकेड आई. तो एक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी वो होगा कि नेवर बाई वाइट शूज़ व्हेन यू आर देयर, वरना वेस्ट ऑफ मनी है भाई. तुम पहनोगे कम, उसको धोते ज़्यादा रहोगे. तो एक चीज़ ये है. तो वहाँ पे मेंटेनेंस भी काफ़ी टफ है बिकॉज डस्ट बार बार आ जाता है. लेकिन भी हॉस्टल बहुत क्लीन रहता है उस हिसाब से क्योंकि रोज़ साफ़ सफाई होते रहती है. बट वही एकेडमिक बिल्डिंग, लाइब्रेरी, ये सब थोड़ा गंदा हो जाता है क्योंकि रोज़ वहाँ साफ़ सफाई नहीं हो रही होती है. तो इस चीज़ में थोड़ा सा लैग कर रहा होता है. Otherwise, and one more thing that is worth praising are the two new hostels for both boys and girls, मतलब separately but 300 occupancies है दोनों की और सिंगल रूम प्रोवाइड किया जाता है. तो वो भाई बहुत सही बिल्ट है. वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर गया. या तो हमने उम्मीद ही कम कर ली थी कि NIT जमशेदपुर में कुछ बन रहा है तो कुछ अच्छा बनेगा, बट वो इतना सही है. इट इज़ वर्थ प्रेजिंग यू गाइस. 3rd और 4th ईयर में लड़कियों को अलॉट हो जाता है वो हॉस्टल. सो बहुत सही है वो. ऑल्सो जमशेदपुर इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन, तो मैक्सिमम एरिया इज़ ऑक्यूपाइड बाय द इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हियर एंड द रेस्ट ऑफ इट इज़ गिवन टू इट्स एम्प्लॉयज़ टू स्टे देयर. उनके लिए स्कूल्स, उनके लिए पार्क्स, उनके लिए क्वार्टर्स, एवरीथिंग एल्स इज़ देयर. सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एट नाइट लाइफ हियर देन दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू. तुम थोड़े से एडवेंचरस हो, नेचर ज़्यादा पसंद है तो तुम थोड़ा भी जमशेदपुर के बाहर चले जाओ तो झारखंड इज़ फुल ऑफ इट. बट अगर तुम पार्टी, नाइट लाइफ ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हो तो NIT जमशेदपुर इज़ नॉट द चॉइस फॉर यू. Talking about the clubs here, which is the most interesting part of the entire BTech life. Like every other colleges, we have multiple clubs here too. Cultural clubs would include everything in between singing, dance to fashion and photography. Then we have technical clubs related to ATV making and plane making, and also the club known as Phoenix, which is responsible for plane making. It went to Los Angeles last year for some sort of competition. So if you are interested in it, there is scope in this too. Then we have some non-profit clubs like Sankalp, NSS and Go Green clubs. Then we have entrepreneurship cell. We have NCC here too and the other sports clubs. So overall we have everything here. And if you are someone जिन्होंने अब तक कुछ ट्राई नहीं करा था स्कूल लाइफ तक and you want to try new things, then this is your time. क्योंकि बहुत लोग ऐसे जो लोग कॉलेज में आके ट्राई करते हैं एंड इट इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. बहुत हम लोग सबको पता है कि कॉलेज में आके बहुत सारे न्यूबीज़ होते हैं, वो न्यू ट्राई कर रहे होते हैं, तो वी नो हाउ टू सपोर्ट देम. तो येस, दिस विल बी योर टाइम, यूटिलाइज इट वाइजली. ये सब मत सोचना कि पढ़ाई मैनेज कैसे होगी, ये क्लब वैसे क्लब, करना पड़ेगा यार. पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगी वरना. देन here comes the fest. We have 3 annual fest here. Culfest, which is the cultural fest as the name suggests. Then the technical fest would be OJAS and Urja, which is our interbranch sports event. So इस साल के पहले तक कलफेस्ट और ओजस अलग अलग होता था अलग अलग टाइम पे, बट इस साल से दोनों को कंबाइन कर दिया गया है. एंड द मोटिव बिहाइंड इट वाज कि फंड ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ग्रैंड कर सकेंगे. बट
आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज पहले हमें 2 कॉन्सर्ट्स अटेंड करने का मौका मिलता था एक साल में, और अब हमें बस एक ही बार करने को मिलता है। और बाकी जो इंटर ब्रांच स्पोर्ट्स इवेंट है उसमें वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं एंड एवरीबडी टेक्स पार्ट इन इट रिप्रेजेंटिंग देयर पर्टिकुलर ब्रांच। हमारे पास 8 ब्रांचेज हैं, उनमें से मोस्टली अब तक तो सिविल ही जीतते आ रही है, समहाउ सारे एथलीट सिविल में ही चले जाते हैं हर साल। देन उसके अलावा I would like to talk about the crowd that we have here in NIT Jamshedpur. The students here are mostly from UP, Bihar and Jharkhand. I myself am from Jharkhand. तो और इन तीनों जगह की जो पब्लिक है इनका मोर और लेस बिहेवियर सेम ही रहता है। थोड़ा लैंग्वेज का ऊपर नीचे हो सकता है बट बिहेवियर थोड़ा बहुत सेम ही रहता है। और तो उसकी वजह से उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिल पाती है बिहेवियर में जो एक नेशनल कॉलेज में मिलनी चाहिए, बिकॉज जब लोग अलग अलग स्टेट से आ रहे होते हैं तो वो अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट लेके आते हैं एंड देन यू गेट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड। तुम उनसे कुछ सीखोगे, वो तुमसे कुछ सीखेंगे, बट जब सब एक ही टाइप के लोग एक जगह पे रहने होते हैं तो वो उसमें डाइवर्सिफाई कुछ नहीं हो पाता है। तुम्हारे जो नेचुरल पर्सनालिटी है बस वही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है कि ऐसे ही चलती है दुनिया। तो तुम एक बार में बाहर जाओगे तो तुम्हें धक्का सा लगेगा कि ऐसे नहीं चलती है दुनिया। तो आई थिंक दैट इज़ समवेयर वी लैग, बट कॉम्पिटिशन टफ रहता है उस वजह से क्योंकि सब एक ही माइंड सेट के लोग हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिज़ास्टरस सिचुएशन है, अच्छी ही है। तुम्हें अपना जो क्राउड है वो ढूंढना पड़ेगा कि वेयर आर यू फिटिंग इन, और ज़रूरी नहीं है तुमको फिट इन करना पड़े, तुम अकेले भी रह सकते हो। Then I like to talk about the placements, really the thing that we are really here for. तो placements तो भाई तगड़ी है यहाँ की। NIRF रैंकिंग का जो भी हो रहा हो, बट जो अच्छी NIRF रैंकिंग वाली कॉलेजेस हैं उनसे भी बेटर प्लेसमेंट्स हैं कुछ से। और मोस्टली इट इज़ फेमस फॉर इट्स प्लेसमेंट ऑफ कोर ब्रांचेस, बिकॉज जो मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट्स ये लोग देते हैं वो ऑलमोस्ट सर्किटल ब्रांचेस के बराबर की देती है। आई नो पैकेजेस डिफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा, बट जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, हर एक बच्चे की प्लेसमेंट लग जा रही है, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरे अच्छे कॉलेजेस में नहीं लग रही होती है इतनों की प्लेसमेंट। सिविल की तुम्हारी 97 के अराउंड है परसेंटेज ऑफ पीपल प्लेस्ड इन सिविल NIT जमशेदपुर में। बाहर किसी कॉलेजेस में देखो 67-70 के आसपास भी मिल सकते हैं। तो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। और क्योंकि ये इंडस्ट्रीज से घिरे वाले एरिया में है तो दैट इज़ इट्स एडवांटेज। वो क्यों इतना प्लेसमेंट करवा पा रहे हैं, NIT राउरकेला का भी वही एडवांटेज है। इनकी कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इसके आसपास। तो तुमको ब्लैक डस्ट थोड़ा बहुत झेल लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ एक्चुअली एडवांटेजेस फॉर यू। तो प्लेसमेंट्स का तो अच्छा सीन है यहाँ पे। और जो ये लोग अपने ऑफिशियल ब्रोशर पे दिखाते हैं उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है एक्चुअल स्टैट्स में। मोस्टली जो लोग ऑफ कैंपस लैंड करते हैं अपनी प्लेसमेंट उनको भी वो लोग अपने ब्रोशर में ऐड कर लेते हैं, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। और फिर लास्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स काउंसिल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर पार कर लेती है स्टूडेंट्स काउंसिल को, उतना ज़्यादा डिसीजन नहीं लेने देती है इंडिपेंडेंटली। पहले तो यही सीन था, अभी लास्ट ईयर आई गेस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। बट अगर स्टूडेंट्स काउंसिल चाहे भी कुछ अच्छा करने का तो वो उसे पेपर वर्क में इतना ज़्यादा फंसा देती है कि तुम घूमते रहो और वो ना जाने वो प्रपोज़ल कब एक्चुअली में एग्जीक्यूट होगा। तो दोज पीपल हु केयर इनफ वो रोज़ रोज़ जाके हाज़िरी देंगे अपनी जो भी कंसर्न मेंबर है उसके केबिन में, वरना फिर वो भूल जाएंगे, वो भूल जाएगा, फिर वो फाइल कहीं पड़ी रहेगी, डस्ट कलेक्ट करती रहेगी, ऐसा ही होता है। तो यस, और इसका किसी चीज़ से लेना देना नहीं था नॉर्मल स्टूडेंट से, क्योंकि मैक्सिमम हम नॉर्मल स्टूडेंट्स ही रहेंगे जिनको पॉलिटिक्स या फिर थोड़ा इन्फ्लुएंस वगैरह में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये चीज़ थी। And with this we come to the end of this video, and I hope I was able to clear your confusion to some extent. And even if I was not, do not worry, just comment your doubts below, and I am going to drop off 4 more videos related to NIT Jamshedpur, related to my personal experience here from the very first semester to the last one, and a dedicated video on production and industrial engineering, which is my branch, because
जब मैंने ऑप्ट करा था इसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ब्रांच एंड नोबडी नोज अबाउट इट, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट. Then I would be sharing my experience during the placement season, क्योंकि इनके वजह से ही मैंने वीडियो बनाना चालू किया, क्योंकि बहुत लोग लेटली मैसेजेस कर रहे थे कि मैम गाइड कर दो, मैम ये करूँ वो करूँ, छुट्टी में क्या करना है, प्लेसमेंट आ रहा है ये वो. तो आई डिसाइडेड कि वीडियो बना के डाल देती हूँ, जब भी इनको कन्फ्यूजन होगा सेम चीज़ का लिंक बार बार भेजते रहूँगी. Yes guys, this is how I decide to promote my own channel. You can judge me for that, but yes, I think it would be beneficial to more people, so I'm doing it. और फिर एक वीडियो होगी मेरे इंटर एन आई टी एक्सपीरियंस पे, 4 इंटर एन आई टी में गई हूँ. और फिर यस, तो फिर अपने डाउट्स कमेंट में लिख दो ताकि मैं अगले वीडियोस में कवर कर पाऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.